Good morning, students. Today we are going to determine the new experiment is determine the turbidity in given water of sample. The apparatus required for this experiment is an instrument known as नेफ्लोमीटर. ये देखिए नेफ्लोमीटर, और इसको आप टर्बिडिटी मीटर भी बोल सकते हैं. ये नेफ्लोमीटर है. ये सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल लेते हैं. इसको क्यूवेट बोलते हैं. और इसमें एक पर्टिकुलर मार्किंग है. देखिए अभी इस मार्क तक आपको सैंपल सॉल्यूशन इसमें भरना होता है. ठीक है. एंड द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ weighing machine or electronic balance. And the chemicals are required for this experiment. First one is hydrogen sulfate, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन या हेक्सामाइन बोलते हैं इसको. एंड द apparatus required for this experiment: beaker, measuring flask, wash bottle जिसमें हम डिस्टिल्ड वाटर भरते हैं, वाश बोतल है, एंड मेजरिंग सिलेंडर, फनल एंड पिपेट. Right? Now the question arises, what is the turbidity? Turbidity is caused by suspended matter or impurities that interfere with the clarity of the water. The impurities may include soluble, colored organic compounds, finely divided organic and inorganic matter, clay, silt, plankton and other microscopic organisms. Or you can say turbidity is defined as the reduction of transparency of a liquid caused by the presence of undissolved suspended matter. Clear? Now come to the preparation of Stokes solution of chemicals. Now you can see the preparation of Stokes solution of first one hydrogen sulfate, and this is spatula, known as spatula. Hydrogen sulfate, one gram of hydrogen sulfate dissolved in 100 ml distilled water. 1 gram. One gram hydrogen sulfate dissolved in 100 ml of distilled water.
मैंने हाइड्रोजन सल्फेट लिया है 1 ग्राम एंड वो मेजरिंग फ्लास्क में मैं इसको 100 ml मार्क तक फिल कर लेता हूँ। इसमें एक मार्क है 100 ml का एंड डिजोल्व। Now the other chemical required for this Stokes solution is hexamethylene tetraamine. Measure it 10 gram and dissolve in 100 ml distilled water also. Clear? 10 gram. टेन ग्राम सोल्यूशन लेना है आपको हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन एंड डिजोल्व इनटू 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। And shake well. Now the each solution of both take 5 ml with the help of pipette in hydrogen sulfate 5 ml and transfer another volumetric flask of 100 ml, and the other solution of hexamethylene tetraamine also take 5 ml with the help of pipette and transfer same volumetric flask of hydrogen sulfate which take 5 ml and dilute it 100 ml of distilled water, 100 ml of distilled water. The solution is prepared of 400 NTU and put in for 24 hours. 400 NTU. NTU is the unit of turbidity, or you can say नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। 400 NTU का आपका ये सॉल्यूशन रेडी हो गया है।
जो आपको 24 आवर्स के लिए रख देना। 24 आवर्स के रखने के बाद आपको ये 400 NTU का सॉल्यूशन इस तरह से कुछ टर्बिड होगा, जिसकी टर्बिडिटी आपको नॉन होगी 400 NTU। दिस इज द स्टोक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट and hexamethylene tetraamine for calibrate the instrument of turbidity. Clear? Now we are coming for procedure part. This is the turbidity meter, or you can say nephelometer. The unit of turbidity is NTU, nephelometric turbidity unit, and the permissible limit of NTU in water 5 NTU. वैसे तो क्लियर होनी चाहिए, बट 5 NTU तक आपकी परमिसिबल लिमिट है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेने हैं। सबसे पहले लेंगे आप डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से कैलिब्रेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को। देखिए आपका सैंपल होल्डर है जिसमें हमें सैंपल लेना है। सपोज अननोन सैंपल है, 400 NTU है और डिस्टिल वाटर है। इसमें सैंपल डालने से पहले आप इसको क्लीन करना है इनसाइड एंड आउटसाइड। और इसको आपको ऊपर से होल्ड करना है, सेंटर से या बॉटम से नहीं करना, बिकॉज उसमें आपके क्या होगा, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। और इसमें एक पर्टिकुलर मार्किंग है, ये यहाँ तक इसको आपको फिल करना है। कोई भी सॉल्यूशन हो, ये पर्टिकुलर मार्किंग इसमें ये है। पहले क्या लेना है आपको, डिस्टिल वाटर। राइट, देन इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, लीड बोलते हैं इसको। जैसे हम इनको इसमें सैंपल को इंसर्ट करते हैं तो इससे एक लाइट पास होती है और इसको हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स इट इज कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मीन्स नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर ये 0 नहीं बताता है डिस्टिल वाटर में, तो आप इसको सेट 0 यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सेट 0 का नंबर। क्लियर? तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आपका क्या हुआ, कैलिब्रेट हो गया। अब हम दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे 400 NTU का, जो हमने अभी प्रिपेयर किया है, हाइड्रोजन सल्फेट और हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमाइड। ना फिर आपको वही करना है, फिल्टर पेपर से इसको साफ कर लेना है, आउटसाइड एंड इनसाइड। कोई पर्टिकुलर मार्किंग तक बनना है आपको। अब आपको डिस्टिल वाटर रिमूव करके लिड में दूसरा सैंपल होल्डर रखना है, जिसको क्यूवेट बोलते हैं। अब देखिए कितना बताना चाहिए इसको, 400, बट ये कितना बता रहा है, 350। तो इसको आप क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। फोर 400 सेट करके आप एंटर प्रेस करेंगे। अभी वेट करिए, देखिए आपको बताएगा ये 400 NTU सॉल्यूशन। क्लियर? ये कैलिब्रेट हो गया आपका।
अब आप इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिए। अब इंस्ट्रूमेंट आपका कैलिब्रेटेड है। जिस भी अननोन सैंपल का आपको टर्बिडिटी मेजर करना है उसको सैंपल होल्डर में रखिए और उसकी टर्बिडिटी डिस्प्ले पे आपकी शो हो जाएगी। देखिए मेरे पास जैसे सैंपल है, अननोन सैंपल है, ये अननोन सैंपल है। इसकी आपकी टर्बिडिटी जो शो हो रही है इस पर 100 NT, 101, तो पहला कितना है आपका 101, कर लेता हूँ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। सैंपल 1 के लिए आया आपका 101 NTU। NTU इज नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नाउ रिमूव द सैंपल होल्डर। एक सैंपल हमें प्रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं टैप वाटर लेता हूँ, देखिए ये टैप वाटर लिया है मैंने। ये सैंपल 2 हो जाएगा आपका। सैंपल 2 आपका हो जाएगा जो टैप वाटर लिया है मैंने। (00 NTU यानी टैप वाटर में आपकी कोई भी टर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है। NTU एक सैंपल में देखिए अभी डाइल्यूट करता हूँ इसको। जो हमारा 400 NTU वाला सॉल्यूशन है इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले क्लियर था, अभी कुछ टर्बिड हुआ है। The turbidity of sample third is 46 NTU। ठीक है, अब इसमें आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं देखिए। मैं आपको पहले ऑब्जर्वेशन शो कर देता हूँ इसकी। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है आपकी जो मैंने अभी किया है। आपकी टर्बिडिटी ऑफ सैंपल 1 101 NTU, सैंपल 2 जो टैप वाटर था 00 NTU एंड सैंपल थर्ड इज 46 NTU। क्लियर? नाउ द प्रिकॉशंस आर, प्रिकॉशन में आपको क्या करना है, जो आपने सैंपल होल्डर लिया है क्यूवेट, इसको आपको क्लीन करना है इनसाइड और आउटसाइड से, और उसको ऊपर से होल्ड करके रखना है। आप सेंटर से नहीं पकड़ेंगे उसको। क्लियर? ये इसमें प्रिकॉशंस इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।